Okay, students. So we are going to start the new chapter. Chapter name is a uniform circular motion, and one by one we will see all the topics. First point is circular motion. What do you mean by the circular motion? It's very simple. If any object is moving on the circular path, then the motion of the object is said to be circular motion. It is very obvious, and I am not going to write that definition. Now, circular motion is of two types: uniform circular motion and non-uniform circular motion. First is the uniform circular motion, and second is the non-uniform circular motion. Okay. Now, what is the which type of motion is uniform? Which type of motion is non-uniform circular motion? First, in the uniform circular motion, the body is moving on the circular path with constant speed. Understand my word? Body is moving on the circular path with constant speed. This is the circular path. This is the center O, and there's a body. See, say the body is P, and P is moving on the given circular path with constant speed. So it will call the uniform circular motion. Okay. So in the uniform circular motion, speed is constant. Okay. And there's a one more thing. If the speed is constant, does it necessary to be the velocity is also constant? No, it is not like that, because speed is a scalar quantity and it has only magnitude. So the magnitude may be constant, like body P is moving with the 10 meter per second velocity as speed, 10 meter per second speed. Then if it is not changing, it means speed is constant. But if you will talk about the velocity, then velocity has magnitude as well as direction. When the body is moving on the circular path, then its direction is continuously changing. How? Understand? If body is at this point, suppose that particle P is at the point A. This is point A, and this is the another point B. If the particle at point A, then its velocity will have the direction along the tangent drawn at the point A, along this direction. And when the body P is going to the place B, then its direction will be this, along the tangent. Means direction is going to be changed. Speed is constant, magnitude is constant, but direction is changing. And if the direction is changing, then velocity will also change. Okay. So at the point A, velocity is a VA vector, and at the point B, velocity is a VB vector. It has been changed.
because of the direction change. So you can write here velocity changes continuously due to the change in the direction of motion. Due to change in the direction of motion. Okay, is there any problem? I don't think so. Now if we will talk about non-uniform circular motion, then body is moving on the circular path, but this time the speed of the body is not constant, it is variable, it is changing with time. Speed is changing means body is moving with suppose 10 meter per second, after some time it becomes 12 meter per second, after some time it becomes 9 meter per second, just like that. Speed is changing, then motion of the body is said to be non-uniform circular motion. Speed changes with time. And also if the speed is changing, body is moving on the circular path, then obviously the velocity will also change, because body is moving on circular path, its direction will change, and if the direction is changing, then velocity will change. But here the magnitude of the velocity is also changing. Okay, so overall velocity will change. So you can just write the variable velocity. Okay, there's a one more point you can understand. During the uniform circular motion, the velocity is changing, and the rate of change of velocity is called acceleration. So can you say this is the accelerated motion? Yes, uniform circular motion is a accelerated motion. It is an accelerated motion. Why accelerated? Because the speed is changing, and the change in the velocity with respect to time is called acceleration. And the direction of acceleration, whose direction is towards the center, called centripetal acceleration.
ओके, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, यहाँ जो एक्सीलरेशन काम करेगा उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। Now the topic is angular displacement. And angular displacement is denoted by angle theta generally. अब देखो मैं एक चीज बताऊं, दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डेवलप करो कि इसके पहले के चैप्टर्स में, चाहे वो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो लॉज ऑफ मोशन हो, उसमें हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ रहे थे? उसमें कुछ चीजें थी हमारे सामने, जैसे कि हमारे सामने डिस्प्लेसमेंट आता था, ठीक है, हमारे सामने वेलोसिटी का एक टर्म आ जाता था अचानक से, एक्सेलरेशन आ जाता था, फोर्स आ जाता था, ठीक है, ये सब टर्म्स के आधार पर ही हम उसके मोशन को डिस्क्राइब कर रहे थे। अब यहाँ पर बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। तो जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो एक तरीके से बॉडी रोटेट कर रही है, और जब बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके लिए हम स्ट्रेट लाइन वाले टर्म्स का आधार नहीं लेंगे समझने के लिए, उसके लिए हम रोटेशनल वाले टर्म्स को लेकर के आएंगे, ठीक है। तो यहां पर चीजें जो, जैसे वहां डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन होता था, वैसे यहां पर जो है इस चैप्टर में, रोटेशन वाले चैप्टर्स में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे, क्योंकि बॉडी तो एक ही जगह पे घूमती रहती है ना, तो कहीं तो जाती नहीं, तो वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। वेलोसिटी की जगह पर हम एंगुलर वेलोसिटी को समझेंगे, ठीक है, सबके टर्म्स बताऊंगा। एक्सेलरेशन की जगह पर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, और फोर्स की जगह पर हम टॉर्क की बात करेंगे, टॉर्क, टर्निंग फोर्स जिसको आप बोलते हो, टॉर्क, टर्निंग फोर्स। जैसे वहां किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी मूव करने लगती है, उसी तरीके से यहां हम किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क लगाएंगे तो बॉडी रोटेट करने लगेगी, ठीक है। तो अब यही टर्म्स मैं आपको समझाने जा रहा हूं, किसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, किसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, किसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, किसको टॉर्क कहते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखा जाए और इन्हीं के पैटर्न पर आकर के हम लोग स्टडी किया जाएगा। मैं इन सबको इरेज कर दे रहा हूं। चलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं, बहुत दिमाग नहीं खर्च करना है आपको, थोड़े बहुत से भी काम चल जाएगा। मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये इसका सेंटर है ओ, कोई बॉडी पहले यहां पर थी पॉइंट ए पर, ठीक है, और अब बॉडी कहां पहुंच गई, पॉइंट बी पर, ठीक है। तो जब बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है तो उसने कितना एंगल कवर किया है, ये एंगल, इस एंगल को बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये है थीटा मान लिया मैंने, या डेल थीटा मान लीजिए, एक छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए डिराइव कर लेते हैं।
डेल थीटा मान लिया, ठीक है, रेडियस आर है, और ये जो आर्क है ए से बी तक का जो पाथ है, ठीक है, ये तो डिस्टेंस होगा ना, ए से बी तक की डिस्टेंस, उस आर्क को मैं मान लेता हूं डेल एस। यानी सर्कुलर पाथ पे डेल एस डिस्टेंस चलने पर बॉडी के अंदर डेल थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब इसको कैसे लिखेंगे? डेल थीटा की वैल्यू बताइए, आपको बचपन से मालूम है, आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, ये फॉर्मूला तो बचपन से जानते हैं, उसी फॉर्मूला को अप्लाई करिए तो यहाँ पर, या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, इसी चीज को अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। एंगल कितना है? डेल थीटा इक्वल टू डेल एस अपॉन आर, हो गया काम। यही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल एस अपॉन आर, ठीक है। इसी को इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसी तरीके से मेजरमेंट करेंगे। SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंगल से बताया जा रहा है, और एंगल का SI यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है ना, रेडियन, ठीक है। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, ये सब आप लोग सिंपल चीजें हैं, आप लोग जानते होंगे, उसके पीछे हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। अब आ जाइए एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को समझ लेते हैं फटाक से, यही बता दे क्या? चलिए यही बता देते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो करते हैं, ओमेगा, ऐसे डब्लू बना करके, और थोड़ा गोल मटोल डब्लू बना दीजिएगा, ओमेगा बन जाएगा। याद करिए अब, नॉर्मल वेलोसिटी क्या थी? नॉर्मल का मतलब सिंपल वाला, वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। उसी तरीके से हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ओके। तो यहां पर अगर आपको निकालना हो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे ही निकालते हैं ना भाई, ओमेगा बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? जैसे वहां डी वी बाई डी टी होता है, वैसे यहाँ क्या होगा? डी थीटा बाई डी टी, तो वही डेल थीटा बाई डेल टी। अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इसी को डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट कर देंगे ना,
तो इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा हम लोगों को। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। बिल्कुल उसी पैटर्न पर है, कुछ भी अलग नहीं है। वहां पर भी तो v इक्वल टू डी एस बाई डी टी हो जाता था। इसको कंबाइनली हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यहां पर एक और पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, नोट लिख लेते हैं। इफ टी बी द टाइम, मतलब कैपिटल टी टाइम में कोई पार्टिकल एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, इफ टी बी द टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन, टू कंप्लीट वन रोटेशन, देन तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी के लिए डी थीटा चाहिए। ठीक है, और टाइम तो मिल गया हमें, टी टाइम में कंप्लीट कर रहा है। तो एक कंप्लीट रोटेशन के लिए यहां कितना एंगल बनेगा, आप सोचो। हाफ रोटेशन के लिए 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना एंगल बनेगा, कंप्लीट रोटेशन के लिए एंगल बनेगा 360 डिग्री। और 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, 2 पाई। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 360 डिग्री को तो मिलेगा 2 पाई। ठीक है, तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर कंप्लीट रोटेशन इज 2 पाई। इस बात को भी आप याद कर लेंगे तो बेहतर होगा। टोटल राउंड के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई। ठीक है, और टाइम कितना लिया गया, टाइम भी हमारे पास है कैपिटल टी। दोनों को एंगुलर स्पीड अब निकाल लेंगे आप लोग। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 2 पाई बाई टी, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए इसका अप्लाई करेंगे। ठीक है, और 1 बाई टी को कुछ बोलते हैं क्या, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये टी टाइम पीरियड है ना, क्या इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन। तो ये भी एक फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन। ठीक है, या फिर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद करके रखने हैं। ठीक है, और इसके नेक्स्ट डेट पे हम लोग जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक छोटा सा डेरिवेशन भी करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। और अगर टाइम बचा तो कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे।